Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will learn about physical world, chapter 1. This is our class 11th syllabus of physics. In today's lecture, we will learn the basic introduction of physics. What is physics? Where we will use physics? What is the scope of physics? Forces in physics? This is the basic introduction of physics in this chapter. This is a theoretical chapter, and for the examination point of view, this is not an important chapter, but for the basic introduction, and without this chapter we can't proceed further, we can't do next chapters. So physical world and mathematical tools, these both are basic chapters, and these are the base of this physics. Now in physical world, our first definition is, what is physics? Physics, as we all know, physics is derived from Greek word physis, which means nature or natural things. Means formation of day and night. Light, you can hear me, it means effect of sound. Technology, we are using mobile or computers, means these are the things which we are using in our daily life. Means how the world around us performs, we can learn from the physics. It means physics tells about how this world around us performs. Or without mathematics, we can't derive the formulas or derivations of physics. So we can tell the physics is king of science and mathematics is queen. Now as we know, physics is based on principles and some laws. So there are two principles on which physics based. Two principles are, number one is unification and number two is reductionism. Unification and reductionism. Here is the definition of unification and reductionism, that unification means the approach consider all of world's phenomenon as a collection of universal laws in different domains and conditions. In easiest way, unification means unique. Unique means many theories which can be explained by one law. For example, with the help of law of gravitation, we can describe the apple falling from a tree, as well as motion of planet around the sun, or motion of planet revolves around the sun, or motion of moon revolves around the earth. This is the unification approach. Means various theories which can be discovered by one law. For example, Maxwell's four equation. With the help of Maxwell's four equation, we can study electrostatics, electrodynamics, electromagnetism, electromagnetic waves also. But in reductionism, this is the opposite side of unification. Means this approach, the definition of reductionism is to derive properties of complex systems from the properties and interaction of its parts. In easiest way, reductionism means to reduce breaking complex situation into small parts. In easiest way, we can define this as breaking complex situation into simpler parts. Firstly, we will learn the temperature. For example, in thermodynamics, this is the example of reductionism. In thermodynamics, firstly we will learn the internal energy, refrigerator, temperature of the average temperature of the molecules. Then we use this formula in kinetic theory of gas. So we will break this complex term into simpler parts. By breaking parts, then we will reach to a complex situation. Another example, अगर हमारे पास when a car moves with a initial speed of 5 meter per second, and it will hit a target with a speed of 10 meter
per second. And on target there is a pendulum, and pendulum strikes the wall with 15, this with a final velocity of 15 meter per second. Then what is the initial speed of 15 meter per second? Or this is very complex term. Firstly we will find initial, then final. This is the complex situation, or by which method we can reach this situation? If with the help of reductionism. We will solve by part method, and then we can reach to the final answer. Next one is impact and uses of physics, where we use these physics formula. हम कहाँ कहाँ पे impact and uses of physics में है कि हम physics को कहाँ पे use कर रहे हैं. हम physics को, as we know, physics कहाँ पे use हो रही है? To derive the formulas. और किस लिए यूज़ हो रही है? जो ओल्ड थ्योरीज है उनको डेवलप करने के लिए, न्यू थ्योरीज में डेवलप करने के लिए, मतलब उनके अंदर कुछ भी चेंजेस अगर लेके आने हैं तो हमें फिजिक्स के फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ेगा. और इट कैन एक्सप्लेन सिंपल थ्योरीज. और हमें कितनी थ्योरीज के बारे में बता रहा है? न्यूटन्स लॉज के बारे में बता रहा है, ग्रेविटेशन के लॉज के बारे में बता रहा है. हम कहाँ पे, हम डेली लाइफ में कहाँ पे फिजिक्स को यूज़ कर रहे हैं? इन फोर्स, इन फ्रिक्शन, जहाँ पे हम अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मीन्स दो बॉडीज़ के ऊपर एक फोर्स लग ही रही है. तो इट मीन्स फिजिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ हो रही है, और हम इसी के साथ इन्हीं अपने फिजिक्स फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं. नेक्स्ट वन इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. इन स्कोप, स्कोप का मतलब है, स्कोप एक बहुत वाइडर टर्म है, सब कुछ आ जाता है फिजिक्स का इसके अंदर. मीन्स होल सिलेबस, हम अपनी 11th और 12th में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं जितना भी फिजिक्स में है, पर बस हम उसे डीपली नहीं पढ़ पाते. पर हम जितनी टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स में, जितने फॉर्मूलाज हैं, वो सारे 11th और 12th में ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं. सो इन स्कोप एंड एक्साइटमेंट हम फिजिक्स को डिवाइड करते हैं इन टू डोमेन्स, मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन. मैक्रोस्कोपिक डोमेन है और माइक्रोस्कोपिक डोमेन है. मैक्रोस्कोपिक डोमेन डील्स विद क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स मीन्स जो लार्जर पार्टिकल्स, बिगर पार्टिकल्स पहले ही डिस्क्राइब हो गए थे, वो सब कुछ हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन में पढ़ते हैं. और ये इंक्लूड करती है फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स, जो ये इंक्लूड कर रही है 4 सब्जेक्ट्स को. मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स. मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं. और थर्ड वन इज़ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स. ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की टर्म को हम 12th क्लास में पढ़ते हैं. अभी तक मैक्रोस्कोपिक डोमेन के टाइम पे हमारे पास कुछ भी एटम्स, पार्टिकल्स, ये कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था. लेटर ऑन एटम्स, न्यूक्लियस, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, दीज आर डिस्कवर्ड. और हमारे पास जो सेकंड डोमेन बनी, दैट वन इज़ माइक्रोस्कोपिक डोमेन, विच इंक्लूड्स, माइक्रो से ही पता चल रहा है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इंक्लूड कर रही थी, और ये हमारी लेटर ऑन डिस्कवरी थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम भी बोलते हैं और मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं. क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स. मैक्रोस्कोपिक डोमेन इन क्लासिकल फिजिक्स में, मैक्रोस्कोपिक में जो इंक्लूड कर रहे हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम सब कुछ जो पढ़ेंगे उसमें हम फोर्स, फ्रिक्शन, रॉकेट प्रोपल्सन और फ्लोटेशन ऑफ टू बॉडीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे. मैकेनिक्स मीन्स जो बेस है सिर्फ न्यूटन्स लॉज पे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, और जो हमने थ्योरी ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस जो 11th में हमने पार्ट ए में पढ़ना है, दैट इज़ ऑल फुल्ली, दिस पार्ट इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिक्स. कार, मोशन, फ्रिक्शन हम आगे पढ़ेंगे, वो सारा ए पार्ट जो बुक के हमारे 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारा सारा मैकेनिक्स का पार्ट है. सेकंड वन जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स है. सेकंड वन इज़ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स जो हमने सेकंड पार्ट अपने 11th क्लास में पढ़ना है, इट डील्स विद सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम. ये भी डील करता है मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम के साथ, मतलब लार्जर
बॉडीज, लार्जर थिंग्स के बारे में पढ़ना है। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, कैसे टेम्परेचर के साथ हमारी इंटरनल एनर्जी या एंट्रोपी चेंज होती है। फिर इसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, सेकंड पार्ट है हमारा सारा बुक का। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ना है वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, कार्नट साइकिल, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स में डील होता है। एंड नाउ जो हमने 2 चैप्टर हमने 12th में पढ़ने हैं, दैट आर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो सारा इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन को डील करते हैं, मतलब इसमें हमने सारा चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और सारे चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। एंड ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स हमने पहले भी पढ़ रखा है 10th क्लास में। ऑप्टिक्स आपको पता है डील करता है लाइट के साथ। इसमें हमने ऑप्टिक्स में हमने सारा लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म और कलर्स एक्सिबिटेड बाय थिन फिल्म्स, दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन ऑप्टिक्स। यहाँ पे भी हमने जो लार्जर पार्टिकल्स मैक्रोस्कोपिक के साथ डील कर रहा था ऑप्टिक्स में, उतना ही पढ़ना है। लेटर ऑन जो डिस्कवरी हुई वो हमारी सारी हुई माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में। सो सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन deals with atoms, molecules and nucleus. Also deals with interaction of proton, electron and elementary particles. Means this is the later on discovery. लेटर ऑन डिस्कवरी मीन्स जहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाद में, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में बाद में डिस्कवरी हुई। तो इसलिए ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास बाद में आए। और ये किसको इंक्लूड करता है? जो हमारे पास 12th में एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो भी आएगा ये सारा क्वांटम फिजिक्स में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिज़िक्स की वजह से हमारी सारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन डेवलप किया गया। फिर उसके बाद उसकी लेटर ऑन फेल कर दी गई थ्योरीज़ को। आगे हमने थर्मल इंजन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा। स्टीम इंजन्स में जो 18th सेंचुरी में जो डिस्कवरी हुई उसके बाद सोसाइटी को एक जो है हमारी सोसाइटी में एक टेक्नोलॉजी की वजह से सुधार आना स्टार्ट हो गया। वायरलेस कम्युनिकेशन, पहले तक कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी और फिज़िक्स ने उस चीज़ को प्रोवाइड किया कि हम इस चीज़ से ऐसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स फिज़िक्स के कारण किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई? हमारी टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी की वजह से किस में चेंजेस आए? सोसाइटी में। वायरलेस, इसी तरह जो जो चीज़ें फिज़िक्स में चेंज होती गई उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आते गए। सोलर विंड, जियोथर्मल एनर्जी, जिसमें हमने पहले तक हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कन्वर्ट करनी है, कैसे उसे बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो हमें फ़िज़िक्स ने प्रोवाइड की। जब पहले वायरलेस कम्युनिकेशन आया, कम्युनिकेशन के बाद टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, सुपर कंप्यूटर्स थे, उसके बाद एलईडीज़ बनी, एलसीडीज़ बनी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वाईफाई, जो हम वो वाईफाई के बारे में जो हम बता रहे हैं वो सब कुछ में किसने प्रोवाइड किया? फिज़िक्स ने। मतलब जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप मेरे को सुन पा रहे हो। दैट जो हमें सब कुछ दिया हुआ है ये सब कुछ किसने दिया? टेक्नोलॉजी ने। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। In our nature, there are 4 types of fundamental forces. Number 1 is gravitational force. Gravitational force. As gravitational force is the force of attraction between two objects. Gravitational force is the force of attraction between two objects. Gravitational force है क्या? Gravitational force जो है यूनिवर्सल फोर्सेज है, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी लगती है। अगर हमारे पास 2 मास हैं m1 m2 तो हमेशा उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगी। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो g है, इट मीन्स अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे
पूरे यूनिवर्स तक भी लग रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, जहाँ पे दो मासेस आ जाएंगे वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी. इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, क्योंकि अगर हम दो आदमी बैठ रखे हैं, मेरा मास है और दूसरे आदमी का मास है, तो हम इस फोर्स को फील नहीं कर पाते. सो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लगती है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक्ट करती है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करती है. क्योंकि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे और या फिर वो रिपेल करेंगे, और रिपेल वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक करते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो जो इनकी रेंज है वो भी इनफाइनाइट है. पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रोंगर होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स की. ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं है बट मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दीज आर दी स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, क्योंकि जो इनकी रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे भी लग जाती है. इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस. और जो ये फोर्स है वो लगती है प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन. मतलब जो ये फोर्स है फंडामेंटल पार्टिकल्स पे एक्ट करती है. नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स जो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये बहुत स्मॉल होती है, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर इनकी जो रेंज है. ये भी वीक फोर्स है इन नेचर. और ये लगती कहाँ पे है? इन बीटा डिके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और वो फोर्स वहीं पे ख़त्म हो जाती है. दीज आर दी 4 फोर्सेज इन नेचर: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force.